I'll begin with something which we experience in everyday life, the present scenario. Are we facing a lot of conflict and violence and things like that? Every time you open a newspaper, what do you read in that? Suicide. कोटा में गए ट्यूशन करने सुसाइड किया मर्डर violence and one news really shocked me that they had gone for celebrating birthday and they fought and they killed the boy. Now, are we celebrating birthday or are we indulging in violence? Not only this, murder, robberies, terrorist activities, rampant, gangs are there, all sorts of things. And as a woman, I feel very pain. There's so much of rape, so much of rape. Are women really safe in this country? And sexual crimes are there, and they can even be through Facebook and things like that. You hook a girl and then you exploit her sexually and crime. And delinquency, it doesn't finish with adults only. You find now adolescents and children also committing crime. And the worst is the news about a boy going and shooting the principal. I think in my time I could not have dreamt of such a thing. You can go and kill your own teacher and hitting the teacher and doing all sorts of things. I can imagine sometimes a teacher can be a little rude to you, but that doesn't mean that you have the right to go and beat her or kill her or him or do such things. But these things are happening. Aggression is rampant. Violence is rampant. And it's a time that we did something about it. And it's our children and youth especially to educate them not to do this. And this is the epitome of conflict. When conflict is at the highest level, it is violence. Now, this is not the only situation in India. It is all over the world. And you find this violence taking place in so many forms. In America also there are shootings and killings and whatnot. And besides, at the higher level also there are wars. Ukraine, and all these sort of things. Russia, Ukraine, China, everybody is willing to fight. Why? Why can't we live happily together? Why can't we have peace of mind and happiness? So it is not just a national issue of India, it is an international issue all over the world. So let us see what do we do about it. I've used three words over here: conflict, violence, and peace. Conflict, when it escalates, becomes violence. But when peace comes, it finishes conflict, it finishes violence. So I think all of us want हम अपने घर में peacefully रहे, शांति से रहे, neighborhood में शांति से रहे. But are we really experiencing that? All days we are experiencing कुछ तो गड़बड़ तो नहीं जाएगा, बच्चे के साथ तो नहीं गड़बड़ जाएगी. So we are living in a constant anxiety, you can say. Now conflict accelerated competition. Competition between two people, two parties, two groups, anything. For what? For what are we fighting? It can be about sharing your resources. तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मेरा बॉस मुझको नहीं देता, तुमको पास ज्यादा देता है, sort of thing. You are fighting over resources. Or you can be fighting over your incompatibility, disagreement, anything in life you can be fighting about, or you are dependent and another person is having more. Okay, again you are having fighting. Have and have not. In that also you are having fighting. Now violence is a form of severe escalated conflict. जब बहुत ज्यादा conflict हो जाती है तो violence में convert कर दी जाएगी. I told you that the boy had invited those friends for a birthday party. वहीं लड़ाई हुई, वहीं conflict हुई, और the result was that they killed the boy, the birthday boy. That was the worst thing that could have happened. But what we want is peace. We don't want conflict, we don't want violence. What is peace? The first thing about peace is absence of war and violence at home and at work. Okay, are we really having absence of war, conflict at home? Are we really having violence-free our workplace? Violence cannot only be physical; it can be mental violence also. You can hurt people. You can
create misery for the life of the people, but we want peace. And what is peace? Peace is harmony, and utopia means बहुत ही अच्छी चीज जो पॉसिबल ना हो सके वो यूटोपिया होती है। तो पीस एंड हार्मनी, यहाँ पे आपको एक किस्सा सुनाते हैं। हमारे एक वाइस चांसलर होते थे लाला सूरज भान जी। He had a very subtle sense of humor. So once he was giving a talk to all the faculty members and he said harmony. आप घर में भी अगर हारमोनी चाहते हो, पीस चाहते हो, तो हारमोनी का मतलब है हार मन्नी। मन्नी जो पंजाबी में कहना हार मन्नी, मैंने मान लिया कि मैं हार गया। Do we accept that? It's utopia. It's not very easily possible to say I'm sorry. How many people can say I'm sorry? गलती करते हैं फिर भी सॉरी नहीं कह सकते। और ये डॉक्टर सुनील ने कहा सोशल बिहेवियर वगैरह बात करती हूँ, तो देयर इज सच अ थिंग एज ग्रेटिट्यूड एंड apology and be able to say I'm sorry. In this also I'll tell you a story, and this is related to Punjab University Vice Chancellor, earlier Vice Chancellor, not this Vice Chancellor. He was very nice, and he used to come and attend my lectures also, which was very I would say flattering for me. तो वो जब सॉरी की बात आई तो कहने लगे मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। He had a grandson, 7-8 साल का होगा, तो दिल्ली में पढ़ता था। तो घर आया, कहता वो लड़की बड़ी खराब है, मैंने तो डांटा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो उन्होंने कहा बेटे उसका तो कसूर इतना नहीं था जो तुम बता रहे हो, तुम कल जाके उसको सॉरी कह देना। कहता नहीं लड़कियां सॉरी मांगती हैं, मैं नहीं सॉरी कहूंगा। कहते नहीं तू सॉरी कह के देखना तो सही, गलती तो तेरी है ना, गलती तो उसकी नहीं है। गया लौट के आया, ऐसा तुमने सॉरी कहा? हाँ। कैसे कहा सॉरी? सॉरी। कहते तूने सॉरी नहीं किया, उसको थप्पड़ मारा। सॉरी। कहते सॉरी कहने का तरीका होता है प्यार से, तो कहो आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। कहता ये कुड़िया करती हैं, मैं नहीं कर सकता। मतलब मेल होने का मतलब ये कि I can't accept I've done something wrong and I will not apologize to you. How can harmony come and peace come if we are not willing to say harmony? मैंने अपनी हार मान ली। Peace can be order, stability. हम लॉ वगैरह ऑर्डर से चल रहा है, हम कानून को मान रहे हैं, लाल बत्ती पे हम खड़े हो जाते हैं, चले नहीं जाते लाल बत्ती में, हरी बत्ती की वेट करते हैं, डायरेक्शन सीख लेते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लास में जाके टीचर को कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, विश करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये सब चीजें होती रहें तो पीस होगी कि नहीं होगी? दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू सिस्टम। हमारा सिस्टम जो है उसमें हम ये लाए। और सिस्टम क्या है? बच्चे को माँ बाप पैदा करते थे, कहते तो ना माँ बाप पहले गुरु होते हैं, लेकिन जो जिंदगी बदल देता है वो टीचर होता है। वो गुरु ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में लाके आपको खड़ा करके ऐसी जगह खड़ा करता है जहां आपके लोग इज्जत करते हैं। आई एम श्योर 190 people who are sitting over here, there must be many who, if they go back and think of their own life, they say that there was a teacher जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सोच के देखिए, मैं 1 मिनट आपको दे रही हूँ, सोचिए कि ऐसा कोई टीचर आपकी जिंदगी में मिला किसी स्टेज पे, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल उसमें, जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, जिसको हम कहते हैं आपका मेंटर। अगर मिला तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, और नहीं मिला तो टीचर को बनना चाहिए मेंटर। पर टीचर भी इंसान है तो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। सो दिस टॉपिक आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर सुनील, बहुत रेलेवेंट है कि टीचर को भी तो अपने कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट होती है। फिर क्या पीस इज जस्टिस ऑल्सो। जस्टिस क्या है कि आपके साथ न्याय हो। पॉवर्टी एंड रिचनेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, एथनिक ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अभी देखिए क्या हो रहा है, 2024 आने वाला है, तो ना धड़ लड़ाइयां हुई जा रही है पॉलिटिकली। आपको लगता है कि आप वोट क्यों दो, इलेक्शन क्यों हो रही है अगर इतनी लड़ाइयां करनी होती है? तो ये चीजें जो है ये जस्टिस से हटी हुई है ना। अब अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो बजाय
जस्टिस मिलने के वो सुसाइड कमिट कर लेती है, तो जस्टिस नहीं है, पीस कहां से आएगी? पीस एज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विच इज रेजोल्यूशन, दैट इज द राइट थिंग। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं तब हमें पीस मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करता तो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए, कितने टाइप्स के होते हैं। एक होती है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। आप कहेंगे ये क्या भला है, अभी इंट्रापर्सनल साइकिक में कॉन्फ्लिक्ट हमारी हो रही है। मेरे अंदर ही दो पार्टियां हैं अंदर, इनसाइड मी, और जो लड़ती रहती है। Here I'd like to give an example from Mahabharata, which was, what was Mahabharata? It was a fight between Kaurav and Pandav. Who was justice and who was injustice? Kaurav, दुर्योधन जो था वो injustice कर रहा था। पांडव क्या मांग रहे थे? जस्टिस मांग रहे थे, जो हमारा ड्यू है हमको मिलना चाहिए। हमारे अंदर भी कौरव बैठे होते हैं, पांडव बैठा होता है। जो युधिष्ठिर है वो धर्म है, हमारा पॉजिटिव सेल्फ है, और जो दुर्योधन है वो नेगेटिव सेल्फ है, वो लड़ाइयां करता रहता है, लड़ाइयां करवाता भी है। अब ये जब कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर ही होती है, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं और ये मेरे साथ हुआ है, और मैंने अपने युधिष्ठिर को अल्टीमेटली फिर जीतने दिया, तो मैं पीस में रही। कैसे? एक स्टूडेंट है, कई बार स्टूडेंट बदतमीजी भी करते हैं आपसे, दे आर रूड, दे विल नॉट विश यू, क्लास में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको बड़ा गुस्सा भी आता है। और these days lot of internal assessment is there with the teacher, नंबर आपके पास है, तो आप कहते हैं ठीक है कर ले, तो करना, जब नंबर आएंगे मैं उड़ा दूंगा तुझे, अब देख लीजिए क्या करेंगे। अब जब उसका पेपर आता है और उसने पेपर अच्छा किया हुआ है, उसको नंबर मिलने चाहिए फर्स्ट क्लास के, आप कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, सारा साल मुझको इसने बदतमीजी किया, थर्ड डिवीजन में लग डालूंगा। तो आपका दुर्योधन क्या कह रहा है? थर्ड डिवीजन में डाल। आपका युधिष्ठिर कहता है तू टीचर है, तू इससे ऊपर उठ जा, जो सच बनता है वो कर दे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक स्टूडेंट थी, बहुत बदतमीजी करती थी, उसको मैंने जब आया मेरे पास पेपर तो वो टॉप कर रही थी, मैंने कहा इसको तो उड़ा देना चाहिए, सारा साल इसने बदतमीजी की है। फिर मेरे युधिष्ठिर ने कहा इसके करने के बाद विदु तो अपने शक्ल शीशे में देख नहीं सकती थी, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसको पूरे जो रिजल्ट करती थी टॉप करके आया। फिर जब रिजल्ट आया तो आप देखिए इसका क्या नतीजा हुआ। मैं स्टेयर चढ़ रही थी, डिपार्टमेंट में वो उतर रही थी, कभी नमस्ते नहीं करती थी, गुड मॉर्निंग नहीं करती थी, कुछ नहीं, रुक गई, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने सोचा है क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। कहती मैम डू यू नो आई टॉप्ड इन योर पेपर? मैंने कहा यस आई नो यू टॉप्ड इन माय पेपर। कहती और मैंने आपका ऑप्शन बदल दी, मैं जाके भर के आ गई कोई और ऑप्शन, मैंने अगर रिजल्ट देखा होता है वुड हैव कंटिन्यूड इन योर ऑप्शन ऑफ काउंसलिंग। मेरा कोई बात नहीं, आप तो चेंज नहीं कर सकते, बट इट्स गुड दैट यू हैव दिस रियलाइजेशन। अब देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई, मेरे इंट्रापर्सनल जिसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई, तो वो स्टूडेंट भी मेरे पास एक तरह से उसने माफी तो सॉरी तो नहीं कहा, पर उसने एडमिट कर दिया कि आप, मुझे पहले पता चलता तो मैं आप ही की क्लास में ज्वाइन करती, दिस वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। ये मैं कहानी इसलिए कहानी नहीं है, ये एक्चुअल है। उसके बाद फिर मैं हर जगह मेरिट पे जाने लगी, और उस मेरिट पे जाने की वजह से यूपीएससी तक में मुझे हर बार बुलाते थे। आई थिंक एक साल में कम से कम 6 बार यूपीएससी जाती होंगी। वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरे रिटायर होने में अभी ये देखिए 2017-18 कोविड से पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे बुलाया, और उनके डीजी ने कहा कि आपको इसलिए बुला रहे कि आप मेरिट पे करती हो, आपकी रेपुटेशन है, आप किसी की सुनती नहीं हो, सिर्फ मेरिट पे जाती हो। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि रिटायरमेंट होने के बाद भी मुझे वो याद करना कि मैं मेरिट पे जा रही हूँ, और उन्होंने मुझे फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सिलेक्शन में रखा वहां। तो मैं सोचता मैं तो मेरिट पे लूंगी, यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं था कि मेरी कोई अपनी सिफारिश मेरे साथ चलेगा और कोई नहीं चलेगा। और इस तरह की सिलेक्शन मैंने पुलिस वालों की की है, कैन यू इमेजिन। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा आप बुला के मुझे मार दोगे, बाहर निकलूंगी तो यही लोग मुझे मार के, नहीं आपको पता नहीं है, आपको हम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लेके जाते हैं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता,
मैंने कहा अरे बाप रे, बोले तो गाड़ियां मुझे लेके जाते पर मैं मेरिट पे करूंगी। तो ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हाँ, डर आप कई बार आप सिलेक्शन में जाओगे, ऊपर से आपको दबाव पड़ेगा, आप कहोगे चलो जी कर लो। पर एक बार आप अपने रजिस्टर को जीतने देते हो, उसके बाद आपकी इज्जत बन जाती है, पीपल कैन केयर फॉर यू। और उसके बाद आप कभी भी रिटायर होके भी रिटायर नहीं होते, ये होता है आपके साथ। दूसरी है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मेरी तुम्हारी लड़ाई, मेरी अपने नेबर वाले के साथ लड़ाई, मेरी अपने बॉस के साथ लड़ाई, इंटरपर्सनल लड़ाई, लड़ाइयां जो तो होती रहती हैं, दोस्तों के साथ लड़ाई, पुलिस के साथ लड़ाई। एंड रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज नहीं होती हमारे पास। तो क्या करते हैं हम, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। If we have those resolution strategies, then we can overcome this sort of conflict. और ये अगर कोई अच्छा ट्रेनर हो, तो जैसे इंडस्ट्री में मुझे बुलाया करते थे, तो मैं कहती हूँ then you will not interfere, I will do the way I want to do। और मुझे याद है 2 महीने में हर हफ्ते एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को कराती थी। पहले दिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, फाइनेंस वाले अलग बैठे हुए, सेल्स वाले अलग बैठे हुए, एडवर्टाइजमेंट वाले अलग बैठे हुए, जो परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अलग बैठे हुए, कोई किसी से बात नहीं करता था, सारे ग्रुप अलग अलग न्यूज हो जाते जाके बैठे। तीसरे हफ्ते थोड़े मिलने शुरू हो गए, टी टाइप पे इकट्ठे थोड़ी बातें करने लगे पड़े। 5वें हफ्ते तो ये टाइम रॉकिंग टाइम, हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और फिर अलग अलग नहीं बैठते थे, फाइनेंस भी, ये भी, वो भी, सब इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो उनकी जो जनरल मैनेजर थी, जिन्होंने मुझको इनवाइट किया था, कहते आपने क्या करा, तो किसी से बात करके राजी नहीं थे। मैंने देख लीजिए, अब बात करके राजी हो रहे हैं। मैंने कहा अब मैं आपसे चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस आज और 6 महीने बाद आप मुझे बताइए। मुझे दवाइयां वाली नहीं आती, पर मैं ये जानना चाहती हूँ 6 महीने बाद आप देखो लो से उनकी हाई परफॉर्मेंस हो गई। कहते वी आर रनिंग प्रॉफिट नाउ, जो लॉस में रन करते तुम तो प्रॉफिट में रन कर रहे हैं। मैंने कहा पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग दे दी फिर आप भूल जाओ, आप ये ट्रेनिंग देते रहना। उस जीवन की उनकी जो तारीफ इस बात को हुई कि इन्हें कमाल करके दिखा दिया, तो उसको तो एक और कंपनी ने अच्छी पेपर बुला लिया, तो वो करना बंद कर दिया उन्होंने। तो ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर हम ठीक तरह से ट्रेनिंग दें, स्कूलों में, कॉलेज में, प्लेस ऑफ वर्क में, ये इंटरपर्सनल स्किल्स वाली होनी चाहिए ट्रेनिंग, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है। और फिर है कौन सी, आप देखो क्या चाहिए, जुडिशियल। जुडिशियल क्या है, आप सोचते हो कि अगर मैं लॉ हाथ में चाहूंगा, अपने लिए इलाज चाहूंगा, तो मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट मुझे जस्टिस देगा। क्या जस्टिस मिलता है? आई नो पीपल 30-30 साल उनके बीत गए, अल्टीमेटली वो मर भी गए, उसका घर था कि रिश्तेदारों ने मार लिया, वो बेचारा मर गया, लेकिन घर नहीं उसको मिला। तो ये जुडिशियल फैसले हो रहे हैं या रिड्रेसल है? नहीं, जुडिशियल फैसले का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, प्योरिटी, एंड जो चीज है उसको मिलना चाहिए। अब ये सब चीजें हो तो दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि लेवल ऑफ अक्रंस कैसे थे। एक माइक्रो लेवल होती है, एक मैक्रो लेवल होती है। तो माइक्रो लेवल क्या होती है, वो आपकी इंटरपर्सनल, मेरी तेरी लड़ाई, दो लोगों की लड़ाई, इंट्रापर्सनल आपके अंदर की लड़ाई होती है, दिस इज आल्सो माइक्रो लेवल। एंड देन कम्युनिटी बेस्ड नेबरहुड से लड़ाई, छोटी मोटी आसपास के लोगों से लड़ाई, पार्टी में गए वहां लड़ाई, ये आपकी छोटी मोटी लड़ाइयां हैं। बट मैक्रो लेवल पे क्या है, रीजनल लेवल। आप पंजाबी हो, आप हरियाणवी हो, आप बंगाली हो, आप मद्रासी हो, ओके, ये रीजनल लेवल की आपकी लड़ाई हो जाती है। और फिर है नेशनल लेवल की, कि पूरे इंडिया में वो लड़ाई हो रही है। देखिए फार्मर्स की लड़ाई जो है वो रीजनल नहीं है, और फार्मर्स की लड़ाई पूरे नेशनल लेवल पे है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे जगह फार्मर्स की लड़ाई हो रही है, तो नेशनल लेवल की लड़ाई होगी। अब फिर इससे भी ऊपर आप चलो तो फिर इंटरनेशनल लड़ाई आ जाती है। अब जो कुछ भी हो रहा है, कनाडा वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ, वो ट्रूडो क्या कर रहा है, वो हमको इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने निज्जर को मरवा दिया, हालांकि निज्जर टेररिस्ट था तो मरवा दिया।
अब ये चीजें यहाँ इंटरनेशनल जाती हैं, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो लोग बड़े शौक से कनाडा पढ़ने गए थे, दे आर इन डोलरम्स, ना उनके माँ बाप वहां जा सकते हैं, ना वो वहां से आ सकते हैं। तो देखिए, जिस लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सफर कौन करता है? इंडिविजुअल। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे करेंगे करेंगे, बच्चों को सिखाएं कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करो, तो ऊपर जाकर तो सुखे सुखे पीस ही पीस है। अब ये मैं आपको कॉमनवेल्थ एंड पीस का इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ के बहुत सालों प्रोग्राम करती रही हूँ, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर उनके जो डायरेक्टर थे, मैंने कहा कि वी वांट टू होल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन अमृता सेन का सिविल पाथ पीस। तो उसमें उन्होंने मुझको इन्वॉल्व किया, तो फिर मैंने वो सारा समझा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका मैं निचोड़ आपको सुनाने जा रही हूँ। कॉमनवेल्थ एंड पीस में क्या था कि in 2005 the Commonwealth head of government he said no, we want something कि पीस हो एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो एंड फेथ कल्चर्स डिफरेंट भी हो, तो भी लोग इकट्ठे मिलकर चले। तो फिर क्या हुआ, 2007 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक कमीशन बनाएंगे, और उसके जो होगा लीडर वो हुआ नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। इनका नाम सुना होगा, ये वेरी प्राउड कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिजॉल्व ये किया कि वी विल हैव समथिंग व्हिच इज टाइटल्ड सिविल पाथ टू पीस। सिविल पाथ टू पीस कि हम सब मिलके उसको करें कुछ। इस सारे के बाद जो कंक्लूजन निकले वो 7 कंक्लूजन निकले थे। पहला कंक्लूजन क्या था? यूज ऑफ डायलॉग। हम क्या करते हैं जब हमें लड़ाई होती है, हम बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन। He wanted that dialogue at any level, national level, regional level, personal level, international level. Dialogue must not end. अभी हम भी कह रहे हैं कि भाई कनाडा जो भी कुछ कर रहा है, we keep on having dialogue with them. Okay, communication should continue. दूसरी चीज है commitment to civil paths of peace. मतलब अगर आप वॉर ले आएंगे तो मिलिट्री आ जाएगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, इसराइल में जो हो रहा है। पर अगर टॉलरेंस है तो सिविल पाथ्स ऑफ पीस होगे ना, आपकी लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं। तीसरी चीज थी एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस। जब भी लड़ाई होती है ना, तो एक पार्टी को ग्रीवेंस जरूर होता है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दिस मीन्स सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, बिल्डिंग ऑफ एम्पैथी, गो इनटू द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। उसको क्यों हर्ट हो रहा है, वो क्यों ऐसा चाह रहा है। अगर हम सेंसिटिविटी डेवलप कर लेंगे तो ग्रीवेंसेस नहीं रहेंगे ना, क्योंकि देन वी विल बी एबल टू सी द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। अब क्या होता है, हमारी जो होती है पार्लियामेंट की मीटिंग, तो एक बार चप्पलें जूते तक चले। क्या ये हम पॉलिटिकल कर रहे हैं? क्या हम देश का भला कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं? और पांचवी है जेंडर इश्यूज। औरतों को अगर ज्यादा हम इन्वॉल्व करें इन चीजों में, पॉलिटिकल चारों में जेंडर इश्यूज लेके आए, जितनी चीजें हो रही है थोड़ी कम होंगी। एंड वुमेन आर नोन टू बी मोर अफेक्शनेट, तो थोड़ा लड़ाइयां चलना थोड़ी कम होंगी। लेट्स होप। ये नहीं मैं कहूँगी आजकल लड़के लड़ाकी नहीं है, कई बहुत लड़ाके जम के लड़ाई करते हैं, लेकिन गॉड हैज मेड देम टू बी मोर अफेक्शनेट। And sixth is contribution of the media. अब मीडिया में देखिए कई बार न्यूज ऐसी आती है जो और आग लगा देती है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इस तरह का कम्युनिकेशन, टीवी पे क्या आ रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, ये जो फेसबुक शेयरबुक, इन चीजों में, ये सब मीडिया में, इनमें क्या आ रहा है, ये गड़बड़ ज्यादा कर देते हैं और लड़ाइयां ज्यादा पैदा कर देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एजुकेशन। ये हम सबका रोल आता है, आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। एजुकेशन वाला का क्या रोल है? रोल ऑफ ब्रिंगिंग अप आवर यंग पीपल, बिल्डिंग अप आवर यंग पीपल। कैसे? लर्निंग के साथ सोशलाइजेशन। अब अगर आपने एनईपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, मैंने उसमें सारा किया हुआ है, पेपर भी लिखा हुआ है, और बुलाते भी रहते हैं, इसी वाले बुला लेते हैं।
मैं ऐसे कहती कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देनी, नो नो सम्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड करो, दैट हैज टू बी डन, लर्निंग हैज टू बी डन, बट along with that socialization should be there. Socialization is that you build up values in yourself. Yeah, I have to respect people, I have to learn to be nice to people. फिर वो जो सोशलाइजेशन आती है तो लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। अब इन्हीं चीजों को लेके उन्होंने रिकमेंडेशन क्या करी कि यूथ शुड बी ट्रेन्ड। ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों को। मैं तो यूथ की जगह कहती हूँ बच्चों से ट्रेनिंग हमारी शुरू होनी चाहिए। छोटा बच्चा अगर चोरी करके ले आता है तो वापिस करके और सॉरी कह जाओ, या वैसे जैसे वो लड़के ने लड़की को सॉरी नहीं कहना था, तो आई थिंक दैट माय सन वाज वेरी सेंसिबल एज अ फादर, ग्रैंडफादर, जिन्होंने सॉरी कह दिया। उसने उसको कहते हैं ना पंजाबी में बंदा बना दिया, इंसान बनाने की कोशिश की। तो किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे उनकी? सबसे पहले लाइफ स्किल्स प्रोग्राम होने चाहिए। एंड फॉर कॉमनवेल्थ आई हैव बीन डूइंग दिस लाइफ स्किल्स प्रोग्राम फॉर यंग पीपल, and the results were beautiful. After they finished, they were sort of loving me, loving each other, and there was so much of happiness in that. तो लाइफ स्किल्स सिखाइए, सिर्फ नॉलेज मत दीजिए, सोशलाइज कीजिए, लाइफ स्किल्स सिखाइए। तीसरी चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सिर्फ कहते थे मेंटल ग्रोथ पे नहीं जाना चाहिए, हमको सेल्फ डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, पर्सनालिटी पे जाना चाहिए। कैसे हम कोहेसिव पर्सनालिटी बनाएं जिसमें आपका मेंटल ग्रोथ भी हो, फिजिकल भी हो, सोशल भी हो, इमोशनल भी हो और मॉरल डेवलपमेंट भी हो। तो ये अगर चीजें आपकी होंगी तो नेचुरली देयर विल बी अ चेंज इन द होल थिंग। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स इन कम्युनिकेशन, कैसे बात करो। मैं जब ये कहती हूँ कम्युनिकेशन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कुछ चीजें आपको चाहिए, प्लीज आई हैव सीन sometimes there used to be parties involved, formal parties, यूनिवर्सिटी में पार्टी हो रही है। मेरे पास कोई चीज थी, एक आए जेंटलमैन आके छपटा मार के मेरे से लेके चले गए। खाने की चीज थी, जो चीज मेरे आते थी छपटा मार के ले गए। अरे तुम्हें चाहिए थी, तुम कह सकते थे प्लीज कैन आई ऑल्सो हैव सम। तो फिर कितना बदतमीज है, 4 लोगों को और देखो कैसा जंगली आदमी है। सबने कहा अरे ऐसे करते हैं कि छीनते। अगर वो कहता प्लीज मैम कैन आई हैव समथिंग, हाँ यस गो अहेड। दूसरी चीज होती है थैंक यू। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो थैंक यू की। आप सही, हमारे यूथ में अब थैंक यू वर्ड ही खत्म हो गया है। मैं जब भी कभी कभी बेगर चिल्ड्रन को ट्यून करने के लिए ऐसे सोशल वेलफेयर काम भी करती रहती हूँ, उनको पहले सिखाऊंगी, फिर कुछ दूंगी खाने को देने। अब क्या कहोगे? थैंक यू। तो इतने वो स्वीट हो गए थे, वो उनको जाके तो देती थी पहले थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, नहीं पहले खाने को तो दे दो, उसके बाद थैंक यू कहना। तो देखिए उनका मेरा प्यार, उनका प्यार कितना बढ़ गया कि वो कहीं भी सड़क पे भी मिल जाते तो आंटी आ गए, आंटी आ गए, आंटी आ गए। आंटी ने क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था दादा, बिस्किट दे दिए, खाने को कुछ दे दिया, और साथ में चीजें सिखाई। और तीसरी चीज है सबसे बड़ी, आई एम सॉरी, अपोलोजाइज करना। गलती आपने की है तो अपोलोजाइज करो। इन सब चीजों के लिए टीचर एज अ काउंसलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब एनईपी वालों में रखा हुआ है एजुकेशन में एट एवरी स्टेज दे शुड बी काउंसलिंग। और मैं कुछ ऐसी चीजें भी कराती रही हूँ। जब टीचिंग सेक्टर में करा रही हूँ तो बठिंडा के जो वाइस चांसलर थे, टीचर आप यही करा दो, काउंसलिंग का कहते हो, आप टीचर एज अ काउंसलर करो। मैंने 2 दिन से उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट के काउंसलिंग के प्रोग्राम किए। और जब खो गए कहते हैं आपकी तो हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाती। मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव अ फीडबैक। अब जब आप क्लासरूम में जाते हो क्या होता है? कहते जी अब तो स्टूडेंट्स हमको छोड़ते ही नहीं, हर वक्त चिपटे रहते हैं हमको। मैंने कहा क्योंकि आप अब गुड़ की बेली हो गए हो तो मक्खियां तो आएंगी आएंगी, आप मक्खियों को तो नहीं उड़ा सकते। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर अ टीचर काउंसलर then you can have a very good relation and rapport with your student. आप उसके दुख दर्द को समझ सकते हो, गलत स्टूडेंट को ठीक राह पे ला सकते हो with that counseling. तो अब ये देखिए, इसलिए मैंने आपसे ये कॉमनवेल्थ का शेयर किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये हमें सबको करना चाहिए। अमृता सेन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं करता था, एजुकेशन की बात करता था, और ये हमारी एजुकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये क्या है? एंड ऑल दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी।
मैं जितना साइकोलॉजी को और ज्यादा करती जाती हूँ, मैं यहाँ फाइंड करती हूँ कि कहाँ साइकोलॉजी नहीं है, बिहेवियर, कहाँ बिहेवियर नहीं है। अगर हम उस बिहेवियर को ठीक करते हैं, कल भी मेरी किसी एक ओल्ड फ्रेंड से बात होती थी, कहते साइकोलॉजी तो बड़ी प्रैक्टिकल। ना, हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन टू मेक बिहेवियर बेटर एंड बेटर, एंड दिस हैपेंस इफ देयर इज promotion of respect and understanding. This was the crux of this whole program, respect and understanding. अब ये दो वर्ड जो है, ये देखिए घड़ी घड़ी आएंगे, बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट में भी आएंगे, सब जगह आएंगे। अगर हम एक दूसरे की इज्जत कर लें तो लड़ाई होगी नहीं, और अगर हम अंडरस्टैंड करें, एम्पैथी, सेंसिटिविटी हो, तो हम क्यों लड़ेंगे? हम दूसरे के दर्द को समझ सकेंगे, और दर्द को पहचान लो तो लड़ाई नहीं होती। ओके, अब वो पार्ट खत्म हो गया, आप दूसरा पार्ट में कर रही हूँ। व्हाट डू वी डू अबाउट कॉन्फ्लिक्ट? हम करते क्या है? या तो होता है रिप्रेशन, पंजाबी में क्या करते हैं, मट्टी पाओ, मतलब दबा दो, बात ही ना करो इसकी। क्या मिट्टी डालने से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है? बढ़ती रहती है, और फिर एक दिन वॉल्केनो की तरह फटती है भम करके। तो रिप्रेशन इज नॉट द राइट थिंग टू डू। दूसरी चीज है रेगुलेशन, थोड़ी रेगुलेशन कर लो, ब्रिंगिंग अंडर कंट्रोल, काबू करने की कोशिश करो, अटेम्प्ट टू टर्मिनेट, मैं जीतू तुम्हारे विनिंग पॉइंट पे आ जाओ। तो जो हारेगा वो तो खुश नहीं होगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलती रहेगी। तो करना क्या चाहिए? लाल रंग में से लिखा है रेजोल्यूशन, उस पर मैं थोड़ी और बात करूंगी आपसे। अभी आगे चलिए, चौथे पे क्या है? कंटेन, इग्नोर एंड हैंग बैक। ये है, मैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देखता ही नहीं, मैं कछुआ हूं, मैं कछुए की तरफ अपने आप में सिकुड़ जाता हूँ। इससे सिकुड़ने से क्या लाइफ ठीक हो जाती है? कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हम लोग बच्चे से बात ही नहीं करते, हम इस इश्यू में बोलते ही नहीं है, बस कहते खाना खा लो, ये कर लो, तो ऐसे करते। उससे क्या ठीक हो जाता है? फिर वो मेरे पास आते हैं काउंसलर, मेरा बच्चा ये कर रहा, आप उसको ठीक कर दो। मैंने कहा बच्चे को नहीं, आपको ठीक होने की जरूरत है। तो बड़े हैरान होते हैं। तो जब मैं उनको बैठ करती हूँ, ये क्या कर रहे हो आप, हर चीज में उसको टोकते रहते हो, उसकी मर्जी करनी देते हो, उसकी बात ही नहीं सुनते हो। कहते हाँ ये तो नहीं सुनते। मैं कहा फिर सुनना शुरू कीजिए, आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। एंड देन ये देखिए कितनी बड़ी चीज होती है इंस्टिगेशन। एक पार्टी लड़ी, दूसरी पार्टी, बीच में बंदर बांट क्या था ना, दो बिल्लियां लड़नी है। बंदर ने क्या क्या, नहीं दो बंदर लड़ते, बिल्ली ने क्या क्या, रोटियां खा ली लड़ा के। आप एक दूसरे को और लड़ाते हो, उसकी शिकायत उसको, उसकी शिकायत उसको। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी आपको बताती हूँ रेजोल्यूशन पे, क्योंकि मैं आपको कुछ कराना चाहती हूँ आज, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आप खुद करके देखो कि आप कॉन्फ्लिक्ट में क्या करते हो। अब इसमें यह है कि रेजोल्यूशन में आप कोशिश करते हैं दैट एलिवेट, एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉज क्या है? कॉज को हटाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो क्या करता है? डायग्नोसिस करके कॉज ढूंढता है, कॉज का इलाज करता है। Then process of conflict resolution on generally inclusive negotiation. नेगोशिएशन करते हो आप, तुम क्या चाह रहे हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, नेगोशिएशन हो रही है। मीडिएशन, कोई तीसरा आदमी आके आपको मदद करता है, जैसे काउंसलर है वो मीडिएशन करता है। हाँ कुछ डिप्लोमेसी भी मारते हैं, वो चीज गलत है। डिप्लोमेसी में फिर आगे से बढ़ जाता है। देन अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट अब दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है कंपटीशन, एक होती है कोऑपरेशन। कंपटीशन में क्या है? तुमने ये किया, मैंने किया, तुमने ये किया, मुझे ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपटीशन और लड़ाई हो गई। कोऑपरेशन में लेट अस बी टुगेदर, लेट अस टॉक, लेट अस ट्राई टू सॉल्व थिंग्स टुगेदर। तो बेस्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? कोऑपरेशन का। थोड़ी सी मिथ्स के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि लोग समझते हैं कि अगर आपने विड्रॉ कर दिया ना तो आप कमजोर हो, इसलिए विड्रॉ ना करो, खड़े रहो, लड़ाई करते रहो। दूसरी चीज होती है एवरी डिसएग्रीमेंट मस्ट बी वन, कि आपको हर एक डिसएग्रीमेंट में जीतना ही है, कोई जरूरी नहीं है ना। कभी हार मानी, क्या है आपने हार मान ली। और तीसरी चीज है एक ये गलत फहमी है कि मेन आर नेवर पैसिव एंड वुमेन आर ऑलवेज पैसिव। नो,
sometimes men can be also passive and sometimes women also can be very aggressive. तो ये चीजें मिक्स हैं। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन में फायदे क्या है? इट्स इंक्रीजेस अंडरस्टैंडिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग की बात आई ना पीछे, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। ग्रुप में कोहेजन, ग्रुप में आप भाईचारा हो जाता है, आपके कोलीग के साथ भाईचारा हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और ये सब होने से क्या होता है? आपकी सेल्फ नॉलेज, मैं क्या हूं, आपकी सेल्फ नॉलेज इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे आप अपने कागज पेंसिल निकालिए, मैं आपको कुछ कराना चाहती हूँ। करेंगे? कुछ करके देखेंगे? हाँ ना तो बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे मैम, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। तो कागज पेंसिल निकाल लीजिए फटाफट जी। ये एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगी जिसमें आप अपने आप बारे में खुद सोचोगे, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको हेल्प करती जाऊंगी सोचने में। ये एक ऐसी तो स्केल बना हुआ है जो कि प्रोवर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। प्रोवर्ब होते हैं ना हमारे, इनको क्या कहते हैं, प्रोवर्ब होते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब लिस्टेड होंगे कि आप फिर उसमें क्या करते हो। अगर ये प्रॉब्लम है जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, आप कॉन्फ्लिक्ट में ये करते हो या आप कहते हो नहीं ये गलत चीज है, तो आपने अपना देखना है कि मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा आपको। तो अब आपको ये प्रॉब्लम में एक एक करके पढ़ के बताती जाऊंगी और आपने अपना जवाब देना है। जवाब कैसे देना है उसके लिए आपको एक बनानी पड़ेगी चार्ट, जो कि इसके लिए मैंने कागज पेंसिल आपसे बुलाया है। पहले आप स्केल देखो, पहले कागज के पीछे तरफ, सामने तरफ की पीछे तरफ ये लिख लो स्केल क्या है। अगर आप वो बहुत टिपिकली कर रहे हो, वेरी टिपिकल, आई रिएक्ट लाइक दिस इन अ कॉन्फ्लिक्ट, तो 5 नंबर देना है। फ्रीक्वेंटली करते हो, हर वक्त ही करते हो, फ्रीक्वेंटली करते हो तो 4 नंबर देने। समटाइम्स, अभी हाँ कभी ना, समटाइम्स करते हो, टिपिकल है तो फिर 3 देने हैं। सेल्डम टिपिकल है तो 2 देने हैं। नेवर टिपिकल तो 1 देना है। ये प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक बार आगे चला गया तो मैं घड़ी घड़ी पीछे पीछे नहीं जा सकूंगी। 5 is very typical, 4 is frequently typical, 3 is sometimes, 2 is seldom typical, 1 is never typical. लिख लिया जी आपने? हेलो, लिख लिया? आगे चलो। ओके, यस मैम। अब ये आपने एक टेबल बनाना है। इस टेबल में आप देखिए 10 कॉलम्स हैं, गिन लीजिए। 10 है ना? एक कॉलम पे कुछ नंबर लिखे हुए, फिर ब्लैंक है, फिर दूसरी पे नंबर है, फिर ब्लैंक, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक पर नंबर है, एक ब्लैंक, एक नंबर है, एक ब्लैंक। ये खींच लीजिए, बना लीजिए। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना। पहले सिर्फ कॉलम बना लीजिए 10। अब 10 कॉलम बना के रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8। 8 रोज बना लीजिए। अब पहली रो में जो पहली कॉलम है वहां से 1 लिखना शुरू कीजिए। दूसरे डब्बे में कुछ नहीं, तीसरे में 2, फिर कुछ नहीं, फिर तीसरे, फिर अगले में 3, फिर कुछ नहीं, फिर अगले में 4, फिर कुछ नहीं, फिर अगले में 5। लास्ट वाला खाली डब्बा है। ठीक है, यहाँ आपने स्कोर भरने, जो खाली डब्बे है ना, इसलिए है कि इसमें आप अपना स्कोर लिखोगे। 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी है वो लिखोगे आप। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, समझ आई नहीं आपको? देखिए, हाँ, फिर दूसरे में 6 से शुरू करके 6 7 8 9 10 लिखी है। फिर तीसरी में 11 12 13 14 15 लिखी है। फिर अगले में 16 17 18 19 20 लिखी है। फिर 21 22 23 24 25 लिखी है। फिर 26 27 28 29 30 लिखी है। फिर लास्ट में 31 32 33 34 35 लिखी है। और नीचे टोटल टोटल टोटल, ये आप जब स्कोर सारे लिख लोगे, पूरा चार्ट आपका भर जाएगा। फिर आपने हर कॉलम में टोटल करना है। 5 तरह की है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो आपने 5 के 5 यहाँ सम टोटल करने हैं। समझ आ गई है ये?
Have you understood this? Do you want me to repeat? No, ma'am, previous, ma'am. Okay. Question previous. आपके बन गई है टेबल? तो मैं आगे जी, बन गया, बन गए? हाँ जी, हाँ जी, बन गया। ओके, तो मैं अब प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है ना? उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, इट्स इजियर टू रिफ्रेन देन टू रिट्रीट फ्रॉम अ क्वारल। पहले ही आप पीछे हट जाओ, ज्यादा के लड़ाई करके फिर आप रिट्रीट करो, वो मुश्किल है। आप सोचो कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या आप ये करते हो? अगर ये टिपिकली करते हो तो 5 दीजिए, फ्रीक्वेंटली करते हो 4 दीजिए, समटाइम्स करते हो 3, कभी कभार करते हो 2, नहीं करते तो 1। लिख लिया? कोई गड़बड़ तो नहीं? ये देखिए, ये आपने जो पहला डब्बा है ना, उसके सामने जो ब्लैंक स्पेस है ना, वहां पे आपने भरना है, इस जगह आपने भरना है। अब हम 2 पे जा रहे हैं। 2 का जवाब आपने यहां भरना है, 3 का यहां भरना है, 4 का यहां, 5 का यहां। ओके, चलिए कर लिया पहला वाला? हाँ ना, अब कोई छोड़ना नहीं है। और ये आपके पास ही है, मेरे पास तो रहेगा नहीं, तो आपने जो भी है सच सच भरना है इसमें। हेलो, बोलो। Yes, ma'am. If you cannot make a person think as you do, make him or her do as you think. अगर आप उसको अपनी थिंकिंग पे नहीं ला सकते तो जो आप चाहते हो वो उसको करवाओ। अगर आप ये करते हो तो 5, तो 4, समटाइम्स तो 3, कभी कभी है तो 2, नहीं करते तो 1। मैं फिर एक बार बात जानी, इसका जवाब यहां आएगा, ठीक है ना? अब तीसरा तीसरा बोलो, सॉफ्ट वर्ड्स विन हार्ड हार्ट। मीठा बोलो तो आप हार्ड दिल, सख्त दिल जो है वो भी जीत जाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब बैक जाने की जरूरत तो नहीं ना, तो आप कर रहे हो ना? ठीक, ठीक है? हाँ जी, ठीक है ना? जी मैम, बिल्कुल ठीक है। 4, 4, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, ये है ना? आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। अब ये करते हो तो 5, तो कम करते हो तो 4, 3, 2, 1, जो भी करते हो वो भर लो। नाउ फिफ्थ, कम नाउ एंड लेट अस रीजन टुगेदर। आओ बैठ के हम खुद रीजन करते हैं। ये पहली कॉलम आपकी पूरी हो गई है, आगे चलो। हाँ जी मैम। ओके, अब यहां है, when two quarrel, the person who keeps silent first is the most praiseworthy। जो लड़ाई में पहले चुप हो जाता है वो बहुत प्रेजवर्ती है। अब देखिए, 5 करते हो, 4 करते हो, 3 करते हो, 2, 1 क्या करते हो वो लिख लीजिए। आप जो भी आपका टिपिकल वे है वो लिख लो। 7, माइट ओवरकम द राइट, वही ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। फिर 8, स्मूथ वर्ड मेक्स स्मूथ वेज। स्मूथ वर्ड आराम से बोलो तो फिर अगला भी आराम से करता है। 9, बेटर हाफ अ लोफ देन नो ब्रेड एट ऑल। इसका हिंदी मुहावरा जो है वो है, भागते चोर की लंगोटी से। सुना हुआ है ना, भागते चोर की लंगोटी से, इसका मतलब वो है। And 10th, truth lies in knowledge and not in majority opinion। कहते हैं ना कि सब कर रहे हैं तुमने भी करना, नहीं, ट्रूथ लाइज इन नॉलेज। क्या चीज है वो ट्रूथ है, और मेजोरिटी ओपिनियन नहीं है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, न करती हूँ, नहीं करती। 5, 4, 3, 2, 1। ये आपकी दूसरी रो भी खत्म हो गई। ठीक भर लिया आपने अभी तक? हेलो, ठीक भर लिया?
आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। अब आप तीसरी रो में आ गए हैं, ठीक है। 11th, he who fights and runs away lives to fight, मतलब लड़ाई हो रही है तो वहां से भाग जाता है तो वो अगले दिन लड़ाई के लिए जिंदा रहता है। Twelfth, he had conquered well that had made his enemies free, जो अपने दुश्मन को दौड़ा देता है वही जीता। थर्टीन, किल योर एनिमीज विथ काइंडनेस, अपने दुश्मन से भी काइंडनेस करो। 14, a fair exchange brings no quarrel, मतलब एक्सचेंज कर लो फेयर, आधा तू आधा में, तो लड़ाई नहीं होती। 15, नो पर्सन हैज द फाइनल आंसर, इसके पास भी अकेला जवाब नहीं होता, बट एवरी पर्सन हैज अ पीस टू कंट्रीब्यूट, और हर एक के पास थोड़ा सा कुछ देने को होता है। आप इससे सहमत है, असहमत है? देख लीजिए। 5 4 3 2 1। कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? हेलो, नहीं मैम, बिल्कुल मुश्किल नहीं। शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट रो आ गई है। 16, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु डिसएग्री विद यू, जो आपसे डिसएग्री करते हैं तो दूर रहो। 5 4 1, जो भी है आप लिखिए। 17, fields are won by those who believe in winning, जो जीतने में विश्वास करते हैं वही जीतते हैं। Kind words are worth much and cost little, मीठे शब्द कोई उनके खर्चा नहीं होता पर उसकी फायदा बहुत होता है। 19, tit for tat is a fair play, जैसे को पैसा आता ना, जैसे को पैसा, tit for tat। 20, only the person who is willing to give up his or her monopoly on truth, मतलब अपने ट्रुथ को अड़ा नहीं रहता, कैन एवर प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ अदर्स, जो अपने ट्रुथ पे अड़ा नहीं रहता वही दूसरों के ट्रुथ से फायदा उठा सकता है। क्या आ गया? अब नेक्स्ट 21, क्या ठीक है ना, 21 आ गया। जहां 21 में देख लीजिए, अवॉइड quarrelsome people as they will only make your life miserable, लड़ाके लोगों से दूर रहो और तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। 22, a person who will not flee will make others flee, जो खुद नहीं दौड़ता और दूसरों को दौड़ा देता है। लड़ाई में ना, खुद नहीं दौड़ता दूसरों को दौड़ा देता है। 23, सॉफ्ट वर्ड्स एंश्योर हार्मनी, मीठे शब्दों से हार्मनी होती है, पीस हार्मनी, याद आया ना जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको। 24, वन गिफ्ट फॉर अनदर मेक्स गुड फ्रेंड, आप भी गिफ्ट दो वो भी गिफ्ट दो, चलो ठीक हो गया सब कुछ। 25, ब्रिंग योर कॉन्फ्लिक्ट इनटू द ओपन, अपनी जो भी लड़ाई है ओपन में ले आओ, एंड फेस देम डायरेक्टली, हमको फेस करो, ओनली देन विल द बेस्ट सोल्यूशन बी डिस्कवर्ड। कोई सोल्यूशन होगा ना अगर आप उसको हवा करो, बाहर लाओ, अपने जो भी आपको शिकवे हैं, जो भी तकलीफ है उनको बाहर लेके आओ। ओके, अब 26, द बेसिक वे ऑफ हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट इज टू अवॉइड देम, सबसे अच्छा तरीका उनको अवॉइड ही करो। 27, पुट योर फुट डाउन वेयर यू वांट टू स्टैंड, ये होता है अंगद का पैर रख देना, होता था रामायण में, अंगद ने पैर जमा दिया तो रावण भी नहीं हिला सकता था, तो जो आप करना चाहते हो जम जाओ, हिलो नहीं। 28, जेंटलनेस विल ब्रिंग ओवर एंगर, अगर आप जेंटल हो तो गुस्से वाले को भी गुस्सा दूर हो जाएगा। 29, गेटिंग पार्ट ऑफ व्हाट यू वांट इज बेटर देन गेटिंग नथिंग एट ऑल, तो थोड़ा मिल दिया ये काफी है बजाय कुछ भी ना मिले। 30,
फ्रैंकनेस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। देखा ट्रस्ट आ गया ना यहाँ, हम जो अगला लेके चलेंगे ट्रस्ट को। फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट विल मूव माउंटेन्स। हो गया यहाँ तक। अब हम लास्ट पे आ रहे हैं, लास्ट गो पे। 31. There is nothing so important that you have to fight for. कोई भी चीज इतनी जरूरी नहीं कि तुमको के लिए लड़ाई करनी चाहिए। There are two kinds of people in the world, the winners and the loser. दो तरह के लोग होते हैं, या तो जो जीतने वाला है या जो हारने वाला है। इसके बीच में भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, वो नहीं। When one hits you with a stone, hit him with a piece of cotton. जो पत्थर मारे उसको छोटी सी रुई मारो। 34. What both people given halfway, आधे रास्ते में जो सलाह कर लेते हैं, फेयर सेटलमेंट इज अचीव्ड। आधे रास्ते में कर लिया तो फेयर सेटलमेंट हो जाती है। By digging and digging, the truth is discovered. आप उसको एनालाइज करते जाओ, करते जाओ, तभी ट्रुथ पर पहुंचते हो, सच्चाई पे पहुंचते हो कि क्या हुआ। ओके, अब देख लीजिए कोई मिस तो नहीं हुआ आपका। ठीक है जी, कोई मिस तो नहीं हुआ? नहीं मैम, कोई मिस नहीं हुआ। ओके, अब मैं जरा इसके पीछे आपको लेके आ रही हूँ। अब आप क्या कीजिए, ये है ना पहली, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, इसको टोटल यहाँ कर दीजिए, इसका टोटल यहाँ करिए। फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 टोटल आपके पास आ जाएंगे। मैं एक्सप्लेनेशन पहले से शुरू करूंगी, फिर दूसरे पे आऊंगी, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। ये स्कोर्स आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हो। कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में पूरा। हाँ जी, कर लिया आपने टोटल? हाँ जी मैम, कर लिया। सबने कर लिया? यस मैम। अच्छा, ओके। अब ये मैं आपको समझा रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। Different people have different strategies to manage conflict, and these things are learned right from the childhood. माँ बाप सिखाते हैं। जैसे कहता कोई माँ बाप होते, मैंने देखा कि बच्चे कहते जा तू भी पीट किया, तू भी मार किया, तो बच्चा लड़का बन जाएगा बड़े होकर। उनको कहते हैं नहीं तू पीछे हट के चुप रह, वो छोटा सा कछुआ बन जाएगा। इस तरह की चीजें जाती है। पर हम क्या करते हैं स्ट्रेटजीज में, बेसिक वी लर्न दिस एंड ये हमारा वे बन जाता है जिंदगी जीने का। तो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजीज में 2 चीजें होती हैं। आप देख रहे अंडरलाइन मैंने किया ना, एक पर्सनल गोल्स होते हैं, एक रिलेशनशिप होती है विद अदर्स। ये 2 चीजें आपकी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ज्यादा गड़बड़ आती हैं। पर्सनल गोल है कि मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए, या दूसरे के गोल्स को भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए क्या अपने गोल इम्पोर्टेंट है कि दूसरे के गोल भी इम्पोर्टेंट है? और रिलेशनशिप में किसी तरह से भी समझाता रहे, पीसफुल है, या आप रिलेशनशिप भी करते हो, या दे आर इम्पोर्टेंट बट गोल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरे के गोल भी इम्पोर्टेंट है, अपने गोल भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। तो हाई रिलेशनशिप हाई गोल, हाई लो रिलेशनशिप लो गोल, ये आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं सारे। अब यहाँ पे है कि फॉर सम पीपल पर्सनल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सम पीपल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से मैं दिखाऊंगी। ये क्या है, टर्टल। टर्टल क्या करता है, कोई उसके पास आए तो अपना सिर छिपा लेता है। अब ये आपकी पहली कॉलम है, ये आपने टोटल किया ना, आपने देखना कि आप टर्टल हो कि नहीं। टर्टल जो होता है विड्रॉ कर लेता है, हट जाता है, और उसके अपने पर्सनल गोल इंपॉर्टेंट नहीं होते, नए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, तो कहता है भाग ही जाओ, छोड़ ही दो, बात ही करना बंद कर दो। They stay away from issues, they stay away from people, they stay away from everything, and they think if they fight, it's hopeless, it's helpless, so let me not fight. Okay. अब आप देखो कि आपका क्या स्कोर आया है। आप इसमें फिजिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, साइकोलॉजिकली भी कर सकते हो। साइकोलॉजिकली अपने चुप बैठ गए, तो नहीं जवाब ही नहीं दे रहे। फिजिकल कैजुअली लेके घर बैठ गए। अगर आपका स्कोर पहले वाली कॉलम में 15 से नीचे आ रहा है, लेस देन 15, तो यू आर नॉट अ टर्टल,
आप विड्रॉ नहीं करते, आप फेस करते हो। अगर 15 से 20 तक आ रहा है तो थोड़े थोड़े टर्टल बन गए हो, थोड़े थोड़े विड्रॉ कर जाते हो कभी कभी। 20 से 25 है तो आप काफी विड्रॉ कर रहे हो, काफी कछुआ बन गए हो। और 25 से ऊपर है तो आप कछुआ ही कछुआ हो। अब डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू सेटल इन अ कॉन्फ्लिक्ट? अगर आप विड्रॉ करते जा रहे हो तो क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी? बताइए। नो मैम। हाँ, ये ठीक करें तो अब आप नहीं। आप 25 से ऊपर तो नहीं गए ना? नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, 20 तक भी कर जाता है काम। लेकिन हाँ, 25 पे जरा खतरा बढ़ रहा है, आप विड्रॉ कर रहे हो। अब कहूंगी ना कि कैसे इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। अब ये है शार्क, शार्क को जानते हो ना, इसका दांत कितने बड़े बड़े हैं, चबा जाता है, खा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शार्क होते हैं। अब इसमें क्या होता है, शार्क माई गोल इज इम्पोर्टेंट, मेरा गोल सबसे इम्पोर्टेंट है, विनिंग इज इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जो भी मदद करता है करे। शार्क को कहते हैं फोर्सिंग। टर्टल था विड्रॉइंग। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए अपनी कॉलम के ऊपर ना, नीचे लिख लीजिए, वो विड्रॉइंग था, ये फोर्सिंग था। अब फोर्सिंग में क्या है, ये जो फोर्स करता है वो कहता है विनिंग मीन्स आई हैव टू अटैक, आई हैव टू ओवरपावर पीपल, आई हैव टू इंटिमिडेट पीपल। अब यहाँ पे अगर आपका स्कोर 15 से नीचे है तो यू आर नॉट अ शार्क। अब विनिंग वाले नहीं हो, अब हराने वाले नहीं हो, आप अटैकिंग वाले नहीं हो। 15 से 20 है, थोड़ा थोड़ा है अटैकिंग, ज्यादा नहीं है। 20 से 25 काफी अटैक कर लेते हो। 25 से अगर ऊपर है तो आपके दांत ऐसे हैं और आप बूम बूम करके अटैक कर रहे हो। अब आप ये देखो, जो अटैक कर रहा है तो लड़का है ना, ओवर पावर कर रहा है, अटैकिंग कर रहा है, तो इंटिमिडेट दूसरों को कर रहे हो तो दूसरे आपसे दूर चले जाएंगे। बच्चों को कर रहे हो, बच्चे चले जाएंगे। इन-लॉज पे कर रहे हो, बीवी से कर रहे हो, बीवी अलग हो जाएगी आपसे। अब आप ये देखिए कि आप लोगों का 25 से ऊपर तो नहीं है। अगर 25 से ऊपर तो प्लीज मेहरबानी करके अपने शार्क को जरा दबाइए और ये लड़ाइयाँ करनी बंद कीजिए लोगों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना शुरू कीजिए। अगर आप 20 तक है तो ठीक है, कभी कभी होना भी चाहिए, थोड़ा सा गुस्सा दिखा भी देना चाहिए। क्या ये शार्क होना अच्छी बात है? नो मैम। नहीं ना। आप थोड़ा सा 20 तक हो ओके, पर 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको। मेरा 17 है मैम। हाँ ठीक है, परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। टेडी बियर क्या करता है? एक खिलौना बच्चे का होता है, नरम सा होता है, वो दबा ले, ऊपर चढ़ के बैठ गया, कुछ नहीं कहता, बस गुदगुदा सा है, प्यार करता है। अब कुछ लोग टेडी बियर होते हैं स्मूथिंग, हर चीज को स्मूथ करते हैं, पता ना। अगर वो पत्थर मार तो मैं कॉटन रूल मार दूंगा, मीठी मीठी बात करूंगा, चाहे आपके साथ उसने जाती भी है फिर भी मीठी बात करूंगा। तो टेडी बियर को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज टेडी बियर के लिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, माई गोल इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो उससे क्या होता है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपकी अच्छाई का, बहुत अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। अगर तो आप 15 से नीचे हो तो ठीक है, इतना टेडी बियर तो होना चाहिए ना। 20 तक जा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। 20 से ऊपर जा रहे हो तो फिर लोग आपको टेडी बियर बनाना शुरू कर देंगे, आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे और आप उनको ना नहीं कर सकोगे। और 25 से ऊपर है तो एक्सप्लॉयटेशन होगी आपकी, एक्सप्लॉयटेशन। और कई बार स्टूडेंट भी एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं मैम प्लीज ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और वो डेट चेंज करवा लेंगे, नंबर बढ़वा लेंगे, ऐसी ऐसी उल्टी चीजें जो आप नहीं करना चाहते वो आपको करनी पड़ेगी। तो टेडी बियर होना ठीक बात है? क्या टेडी बियर होना ठीक बात है? नो मैम। नो। सब चुप इसलिए है कि बिल्कुल भी है, इसका मतलब ये। तो टेडी बियर है ना, उनके लिए एक किताब है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। ये किताब जरूर पढ़ना, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी उससे। टेडी बियर की जिनका स्कोर 25 से ऊपर है ना, वो जरूर पढ़ेंगे किताब, और मुझे याद कर लीजिएगा। और मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप मुझसे फोन करके डिस्कस भी कर सकते हैं अपना पर्सनल केस। ओके,
आपने मेरा नोट कर लिया ना? नहीं मैम प्लीज बताएं Yes, एक बार ma'am, नंबर। thank you. देखिए टेडी बियर अगर आप 25 से ऊपर जा रहे हो तो आप हर एक की हाँ में हाँ मिला रहे हो, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई किसी को नाराज क्यों करो, वो आपसे गलत बात भी करा तो भी आप कर रहे हो, तो ये कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसमें कि यू विल बी मॉल्ड, यू विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय पीपल। सब्जी वाला गलत सब्जी बेच के आपको पैसे गलत लगा लेगा, मतलब हर एक है ना। और आप अगर नहीं मैं कैसे लड़ाई करूं, नहीं लड़ाई नहीं करनी, हारमनी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। नो, नो हारमनी एट एनी कॉस्ट। योर ओन गोल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, पीपल कैन नॉट एक्सप्लॉइट यू। मेरे साथ ये हो चुका है। स्टूडेंट आता है का नाम, अपना जर्नल दे दो, अपनी थीसिस दे दो, अपनी किताब दे दो, एक पीएचडी की सुनती किताबें लेके जर्नल लेके गायब होगी, कहती मेरे पास पढ़ी नहीं, मैडम झूठ बोलगी सारा। फिर मेरी दूसरी स्टूडेंट का, मैडम ये माला रहती है ना, इसके बेडरूम में आपकी सारी किताबें कुतुबें रखी हैं, आप देखो पैसा खर्च करके माला गई, क्योंकि मैंने कहा नहीं आई थी, हाँ मैंने कहा तुमको मिली हूँ, टेडी बेयर मिली हूँ, हाँ कहते अच्छा अच्छा मैडम खाना खाते हैं, मैंने कहा नहीं मैं हाथ धोने चाहती हूँ, तो बेडरूम से लेके गई हाथ धोने के लिए बाथरूम में, वहाँ मैंने देखा सब चीजें मेरी पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा मैं भी आ गई, मैं बड़ा सा थैला लेके गई, सब मैंने चीजें अपनी डाली, और मैंने कहा नहीं मुझे पेट में दर्द हो रही है, मैं अब घर जा रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, हाँ मैम सब दे देते हैं, मैंने कहा सबके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? नहीं नहीं आप ही के पास होती है, मैंने कहा फिर मेरे कमरे में बैठ जाओ, यहाँ बैठ के जितना पढ़ना पढ़ लो, और जब बाहर जाओगे ये रखते चीजें और बाहर जाओ, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बता रहे हूँ आप भी ये कर सकते हो अगर आपका 25 से ऊपर है। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। पॉकेट बुक एडिशन है, ब्यूटीफुल रीडिंग, छोटे छोटे इंस्टेंस में आपको देखा हाँ मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। आदमी भी ऐसे हो सकते हैं टेडी बेयर, औरतें भी ऐसी हो सकती है टेडी बेयर। अब ये फॉक्स, फॉक्स होता है कनिंग फॉक्स कहते हैं ना, चिलाकी, बातें चोर की लंगोटी से ही बेटर हाफ लोफ देन नो लोफ एट ऑल। ये ना कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा गोल हो जाए, थोड़ी सी रिलेशनशिप हो जाए, और उसके बाद तुम कौन और हम कौन, देन आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। हाँ फॉर सम टाइम चल जाता है, लेकिन बाद में लोग समझ जाते हैं कि यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ट्रस्ट आ गया ना, ट्रस्ट वर्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर के लिए तो बहुत अच्छी वैल्यू है ट्रस्ट वर्दीनेस, तो वो ट्रस्ट वर्दी नहीं रखता। तो ठीक है आप 15 तक तो कर ही सकते हो, 15 पर 20 तक भी पहुंच जाओ, 20 के बाद थोड़ा बहुत 25 तक जाओ, पर नहीं 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉक्स। तो क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर बीइंग सेल्फिश ऑल्सो, अपना काम निकलवा लिया तो तू कौन है हम कौन, तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, यू आर नॉट डिपेंडेबल, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अब आया लास्ट, ये कौन है? आउल। आउल की आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, 90 डिग्री पे वो सारा देख लेता है, रात को सोते वो जागता है। आउल को उल्लू नहीं कहना, आउल को आउल कहना। आउल इज द सिंबल ऑफ मिनर्वा गॉडेस, मिनर्वा गॉडेस इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो आउल क्या करता है, बड़ी बड़ी आंखों से सब चीज देखता है, ऑब्जेक्टिव होता है, अपने गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे के गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे के लिए भी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है, तो लोग उसकी थोड़े दिनों बाद कदर करनी शुरू कर देते हैं। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ट्रस्टवर्दी, और वो लड़ाइयों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है बाय डीलिंग विद देम, रिजॉल्विंग विद देम। आपस में बैठ के बात करता है, ट्रुथ को फाइंड आउट करता है। जैसे अगर आप बॉस हो तो सिर्फ एक पार्टी का मत सुनो, दूसरी पार्टी की भी बात सुनो, और दोनों को ढूंढो, ढूंढो के ट्रुथ कहाँ है, अब ट्रुथ है तो ट्रुथ पे अपना फैसला करो, तो लोग आपकी एज बॉस इज्जत करेंगे। टीचर में भी यही है कि अगर आप एक स्टूडेंट की बात सुन के दूसरे को नाम लगा लेते तो गलती हो जाती है, लेकिन दोनों की बात सुन के दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखो तो आप ठीक चलते हो। तो हमको क्या होना चाहिए, अगर आप 15 से नीचे हो तो मेहरबानी करके आउल बनने की कोशिश करो। 20 है और 20 से 25 हो तो यस यू आर एन आउल। और आउल करना है कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट करता है, फेस करता है। कन्फ्रंट का मतलब लड़ाई नहीं है, फेस करता है, कन्फ्रंट करता है। और 25 से अगर ऊपर हो देन वंडरफुल, फिर तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी। फिर आपको मैम मेरा स्कोर 31 है। दोबारा बोलो तो। 31 मेरा आउल का स्कोर 31 है। वेरी गुड,
ताली बजाई आपके लिए। 31 एक्सीलेंट। कितनों का 30 से ऊपर है? यस कर दो, मुझे यस यस सुनाई देना चाहिए। 30 से ऊपर कितनों का है? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। आप आओ, जिंदगी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि आप किसी से समझौता फिजूल का नहीं करोगे, जो सही बात है वो करोगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। समझ रहे ना? यू आर एन एम्पावर्ड पर्सन, पीपल विल हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, आप अंडरस्टैंडिंग भी करते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट भी करते हो, दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है? ये है पांचों आगे ना। कछुआ नहीं बनना, लो रिलेशनशिप, लो गोल्स। तो क्या है? आप भगौड़े हो, भाग जाते हो। कछुआ नहीं बनना, टेडी बेयर नहीं बनना, लोग आपके ऊपर रौन के चढ़ेंगे। शार्क तो बिल्कुल ही नहीं बनना, शार्क लड़का ऊंचा बोलने वाला, हाथ में लड़ाई करने वाला वो हो जाता है। तो फॉक्स कभी कभी चल जाता है, अभी बातें चोटी लंगोटी से ही चल जाता है, लेकिन इन लॉन्ग रन फॉक्स इज नॉट पैलेटेबल। Owl is the only one. The goals are important, relationship is important. दोनों के, मेरे आपके दोनों के इम्पोर्टेंट है, तो वो आउट होना चाहिए। अच्छा लगा आपको करके? Yes, ma'am. अच्छा, और ये आप ही के पास है, जो आपका जन्म पत्र बनाया है ना, वो आप ही के पास है। अब आप उसमें से देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ग्रेजुअली आउट की तरफ मूव करना है। जो पांचवा है ना कॉलम, आपने उसकी तरफ मूव करना है। और कभी भी आपको जरूरत पड़े, कुछ समझना चाहो करो, तो मेरा फोन है ना, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपसे आपको आपकी लेवल की चीज समझा सकूंगी। मैम एक बार लिखवा दीजिए फोन नंबर प्लीज। नंबर अभी दोबारा दूंगी, एंड में ना फिर दूंगी, तो आप ओके मैम। ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम में बहुत थोड़ा, ट्रस्ट नहीं करना ना, ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट जिस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेज, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेज तब होता है अगर आप ट्रस्टवर्दी बनो। चले आगे ट्रस्ट के ऊपर। व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज माय फेथ इन यू एंड योर एबिलिटी। क्या आ जाता है बीच में से, ये कहां से आ रहा है? अच्छा, इन योर एबिलिटी एंड योर वर्ड। वर्ड क्या आता है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये सुना हुआ है ना आपने मोहरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनमें कहना राजपूत बहुत ये इसमें विश्वास करते हैं, प्राण जाए तो लोग उनकी इज्जत करते हैं, ये बहादुर है और अपने बात के पक्के हैं, बात के पक्के हैं। तो ये ट्रस्ट वर्दी होता है आदमी। एंड ट्रस्ट इंक्लूड्स द डिग्री टू विच आई बिलीव यू विल लुक आफ्टर मी एंड माई इंटरेस्ट। जब कोई ट्रस्टवर्दी होता है तो हमें उसमें फेथ होता है कि ये मेरा भला चाहेगा, ये मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। हम ऐसा ही दोस्त चाहते हैं कि नहीं चाहते? और टीचर तो दोस्त भी है, मेंटर है, उसको तो ट्रस्टवर्दी होना ही पड़ता है। और इसमें ये नहीं कि आप गलती उसकी टोक नहीं सकते, प्यार से गलती समझा सकते हैं, वो गलती अपनी ठीक करेगा। ट्रस्ट सजेस्ट दैट यू केयर, आप प्यार करते हो अगले से, उसको वैल्यू करते हो अबाउट माई वेलफेयर। और क्या आप मेरे वेलफेयर के लिए आप मुझे प्यार करते हो, और मेरी सक्सेस के लिए मुझे आप हेल्प करते हो, चाहते हो कि मैं अचीव करूं, मैं गोल जिंदगी का जीऊं। तो टीचर के लिए ये सब चीजें जरूरी है कि नहीं है? रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट में क्या है? अगर आप ट्रस्टवर्दी हो तो लोग आपको तो रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्टवर्दी नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं होती। अब ये देख लीजिए, ट्रस्ट में क्या चीज होता है? यू आर रिलायबल, यू आर गुड, हैविंग गुड कम्युनिकेशन। आप बातचीत करनी बंद नहीं करते, रेजोल्यूशन में बातचीत करनी बंद नहीं करते। क्या हो गया? कभी कभी ना इसमें हो जाता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू। क्या हो जा रहा है कभी कभी? Antivirus problem, ma'am. ये कुछ It's an antivirus update. अच्छा, वो उसको खुद मैं रन नहीं कर सकती ना इसको। अच्छा खैर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखिए, मैंने रिस्पेक्ट के लिए पहले भी आपको कहा। मैम बस पीपीटी खोल लो नीचे जाके। क्या करूं? नीचे पीपीटी इसमें There is मैंने a पीपीटी ओपन कर लो, और मैम ये एंटीवायरस का क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज क्लोज की ऑप्शन आई नहीं रही। इसको क्लोज करके ना Ma'am, there is a minimize माइनस option आ रहा है on the साइड left. में। हाँ, इसको नीचे Yes. करो। हाँ जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहाँ पे हम? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, वो जो मैंने कॉमनवेल्थ वाली चीज कही थी ना, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू एंड यू रिस्पेक्ट मी, ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके से। देन अंडरस्टैंडिंग,
दोनों चीजें आ गई ना, रिस्पेक्ट भी आ गई, अंडरस्टैंडिंग भी आ गई। अंडरस्टैंडिंग क्या है? एम्पैथी, सेंसिटिविटी, मैं आपके समझने की कोशिश करता हूँ, वही उसको आगे एम्पैथी में कहा हुआ है। एंड केयर, आई हैव रिगार्ड फॉर योर सेल्फ, आई लव यू, आई वांट टू नर्चर यू। एंड ओपननेस, मैं एक खुली किताब हूँ, मैं जिसको आप पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो कि भाई क्या चाह रहे हो। तो ये जो चीज है ये ट्रस्ट के लिए होती है। और ये एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? अगर ट्रस्ट नहीं है तो कंफ्यूजन रहता है, मैं तो बिलीव करूं कि ना करूं, चिंता रहती है, ये पता नहीं कब मुझे क्या कर देगा। इनएक्शन, फिर आप उसके साथ ज्यादा एक्शन नहीं कर सकते, फियर, डर रहता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा मेरे साथ ये। अगर ट्रस्ट बिगिन होने लगता है, आप ट्रस्ट वर्दी बनने लगते हो, तो क्या होता है? कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, वो बातचीत करनी शुरू हो जाता है आपसे, आपका विजन और उसका विजन शेयर करने लगते हो, और आप रिलायबल बनते जाते हो। और अगर ट्रस्ट आ गया है तो इट लीड्स टू कॉन्फिडेंस, आप में उसका विश्वास है, कमिटमेंट है कि भाई ये जो बात है वो करेगा, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। और कंटेंटमेंट रहती है, हैप्पीनेस, हार्मनी, ये सब चीज आती है। एंड देन हैप्पीनेस, यू आर अ हैप्पी पर्सन। तो इसलिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ में मेरे पास कितना टाइम है अब ये बता दो, थोड़ा सा कुछ करा सकते हैं? हेलो, कितना टाइम है? 10 मिनट है? Yes, ma'am. Yes. हैं? करना Yes, ma'am. कुछ करना चाहेंगे? ट्रस्ट वर्क मैं पढ़ नहीं रही, मैं आपको Yes, ma'am. ब्रीफली बता रही हूँ क्या होता है। ट्रस्ट वर्क का मतलब होता है, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड वॉक। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कह रही हूँ करते जाइए। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, और एक और मैंने आपको दिया है आदमी जो कि आपको लीड करके चलेगा। आप वो आदमी आपको लीड करके जा रहा है, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप तो छू के आपको बता सकता है, स्मेल करके बता सकता है, टेस्ट करके बता सकता है, जो भी बताना चाहे। ओके, तो आप उसके साथ चल रहे हो और चलते चलते एक जगह आई जहां उसने आपको बताया भी नहीं कि यहाँ पे भाई कुछ है गड़बड़, कुछ पत्थर है या कुछ सिल रखी हुई है या कोई स्टेप है, और आप ठोकर खा के गिर जाते हो। क्या आप आंखें अभी भी बंद रखोगे या आंखें खोल दोगे? ये एक्सपीरियंस आपने कर लिया आंखें बंद करके, लेकिन अब इसी को आगे स्टेप कीजिए कि वो अब आपको लेके जा रहा है, बात नहीं कर सकता लेकिन आपको कुछ करके टक करके बता रहा है कि भी कुछ है, तो आप रुक जाते हो, आपको टक्कर नहीं लगती, ठोकर लगती, फिर वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाता है। तो क्या आपको उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है? उस पर विश्वास आता है? हाँ या ना? No. जिसने गिरने दिया उस पर विश्वास आएगा, जो आपका हाथ पकड़ के ले जाता है वो उसमें विश्वास आएगा? किसमें आएगा? I think मैम जिसने गिरने नहीं दिया। ठीक है, अब मैं सारे नहीं बता रही, पर ये छोटी सी चीज बता रही। अब देखिए, जब आपको कहा कि आप आंखें बंद करके चलो, तो आपकी पहली फीलिंग क्या आई? फियर ऑफ बीइंग हर्ट, यही आया ना आपको? क्या हो जा रहा है, अपने आप ही भागे जा रहा है। फियर ऑफ बीइंग हर्ट, ये ना मैं गिर ना जाऊं, डर ना जाऊं, फियर ऑफ बीइंग मेड फन ऑफ, कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, कोई सडन चेंज आ जाए तो मुझे डर लग रहा है, फीलिंग ऑफ बीइंग लेट डाउन, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लोग, सेंस ऑफ डिपेंडेंस एंड हेल्पलेसनेस। स्टूडेंट भी आप पे एक तरह से डिपेंडेंट है ना, हेल्पलेसनेस है। डाउट इन द एबिलिटी ऑफ द लीडर, कि पता नहीं ये ठीक तरह लेके भी जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, मुझे वो पता नहीं चलता। देन फियर ऑफ अननोन, क्या करेगा पता नहीं, क्यों करेगा। सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा। जजमेंटल सिचुएशन, लोग मुझे क्या कहेंगे, जजमेंट देंगे मेरे ऊपर। एंड डाउट इन द इंटेंशन ऑफ द लीडर, कि लीडर ठीक भी रहेगा कि नहीं। और अगर गिरा दिया तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर आप आके खोल देते हो, फिर उस पर विश्वास नहीं करते। क्या ऐसा इसमें से कुछ चीजें फील हुई थी जब आप अंडे बने? क्या आपको इनमें से कुछ चीजें फील हुई थी जब मैं? जी मैम बिल्कुल। तो आप ये याद रखिएगा कि
आपका स्टूडेंट आप पे डिपेंडेंट है, इसको भी एक तरह की वहम डर हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो अब है कि भाई हम फेयर को कैसे करें। पहले है कि सिचुएशन को समझाइए, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, अननोन से मत चलिए, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू, जो आता है उसके आगे चलिए। नहीं क्या हो जा रहा है, ना पे किसके जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रही है। ओवरव्यू ऑफ सिचुएशन दीजिए, प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको जोड़िए, जो आप नया टॉपिक जो भी करा रहे हो वो वार्निंग प्रेपरेशन पहले कर दीजिए कि ये हर्डल आएगा, इसके लिए तुम तैयार रहना। प्रेजेंटिंग अबाउट द कोपिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या कर सकते हो, उसमें किस तरह से सवाल हल कर सकते हो, ये बताइए। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग हर्ट, कोई केयर एंड कंसर्न को नर्चरिंग रखो, कि प्यार आपको लगे उसको कि मुझे प्यार करते हैं। इसके लिए सिंसियरिटी वगैरह आपकी अपनी क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, मैं यहाँ पे आपको ले आई हूँ। ये आप देखो ना, बिल्डिंग ट्रस्ट में क्या चाहिए, बी ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट है क्या, आप छुपे रुस्तम नहीं हो, आप एक खुली किताब हो, ओपननेस है ना, ओपननेस आया था कि नहीं, खुली किताब हो, आप रिस्पॉन्सिव हो, उसके जवाब दोगे, उससे बात करने को तैयार हो, यू आर केयरिंग, आप उसको प्यार करते हो, आप उससे मतलब अफेक्शनेट हो, एंड सिंसियर हो, आप ये नहीं आज कुछ किया कल कुछ किया, एंड देन यू कैन बी ट्रस्टवर्दी। ये सब करोगे तब आप ट्रस्टवर्दी बनोगे। और अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करनी है तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ना, ट्रस्टवर्दी होकर तो आउट हो गए, समझे ना। जी बिल्कुल। कितनी इंटरट्वाइन चीज है। अब ये मैं लास्ट आपको ये दिखा रही हूँ, बुढ़े बाबा क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लग जाता है, ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट होने में एक चुटकी लगती है। वो जो एक ठोकर लगी तो आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, आपने आंखें खोल दी। थैंक यू। तो यहाँ थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, आप बहुत अच्छी तरह से मेरे आपने सारी की चीजें, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ये मेरा हो क्या हो रहा है, बंद हो गया, आपने नोट कर लिया था फोन। Yes, ma'am. मैम मैं नहीं कर पाई मैम, बोलोगे मैम आप लिखवा दीजिए। 0172 कोड है और 2586676 लैंडलाइन है मेरी, और मेरी ईमेल है विदु मोहन, मेरा नाम देख लो ना, छोटे लफ्जों में सारा कंटिन्यूस है, विदु मोहन 21, मैं 21 सेक्टर में रहती हूँ ना, 21@gmail.com।